Okay, without taking the time, hi, hello, good afternoon, and namaskar to everyone. As said by great Vivekanand, there is only one difference between dream and aim. Dream requires effortless sleep and sleepless efforts. Okay, sorry. Okay. So today I, Paras Pradhan, as the founder and the president of the Law Scholar Independent Society, welcome you all in the first national webinar on environment protection law at the word and Indian context. Now we all know, जैसा कि हम सब जानते हैं, LSIS Education Society, it's a society under the process of, for example, the bar and the UGC and some of the journals departments. हम इस society के माध्यम से we will going to organize different activities in near future for the betterment of the students, scholars, society, and for the welfare of social welfare. In order to enhance skill development for the scholars from different field of students from science, law, commerce, CS, IT, humanities, and etc. by enhancing the group discussions session. Okay, more participants will going to it. Okay, by counseling with the expert, by debates, by moot court, by seminars specifically for law, specifically for science. Okay, please mute yourself. It's a request to all the participants. Okay, we also provide the crash courses of competition and board students, mathematical reasoning concept clarifications, English communication and competitive classes as soon as possible. Our team is working on it. Presently हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैथ्स, रीजनिंग और केमिस्ट्री की क्लासेस कराना शुरू कर दी है. इफ यू वांट टू टेक इट सीरियसली फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर और कुछ अचीव करना चाहते हैं, देन यू कैन अवेल आवर रिसोर्सेज बाय लॉगिंग टू आवर वेबसाइट, बाय लॉगिंग और सब्सक्राइबिंग आवर चैनल. हमें मेल्स भी कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड इशू. देन वी हैव डिफरेंट टीम्स इन आवर सोसाइटी: एडिटोरियल टीम, टेक्निकल टीम, पब्लिक रिलेशन और मीडिया टीम, ह्यूमन रिसोर्स, जो कि टीम्स हमारे पास मौजूद हैं. ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. और हम डिफरेंट टीम्स और उनकी क्वालिटी की बेसिस पे उन्हें ऐड ऑन कराने की भी कोशिश कर रहे हैं. नाउ कमिंग बिफोर द टॉपिक ऑफ टुडेज वेबिनार, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट more than 15 plus university including National Law Institute Bhopal, more than 21 law colleges, more than 15 plus science and art colleges, more than 15 cities, 8 states students in just 21 days. So now I request our first very experienced science and environmental research expert, Dr. Saurabh Kumar sir, HOD of one of the science college, PhD and PGDM in science tech education, and the founder of NRA and EPSID Association, to please come to share his views on our respective topic. So over to you, sir. Thank you, Paras. आवाज मेरी सुनाई दे रही है आपको? Yes, sir. Firstly, good evening to everyone. सबसे पहले I would like to congratulate Paras Pradhan for his initiative to start this NGO, through which he is going to organize various activities for the benefit of the different various streams students, and especially the students which are related with the law background and other fields. बहुत अच्छा प्रयास आपने किया है और आज मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ये इस तरह का वेबिनार जो है वो एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के और जो लॉज हैं, एनवायरमेंटल लॉज हैं, उनको लेकर के करें. मैं जो अपना टॉपिक आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूँ, बेसिकली जो टॉपिक है मेरा वो है इश्यूज अराउंड वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन एंड एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क्स. जो इश्यूज हैं वाइल्ड लाइफ के अराउंड और क्या हमारे पास जो लीगल फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर करूँगा.
जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ को लेकर के हमारे दिमाग में जनरली कुछ एक मिसकंसेप्शंस रहते हैं कि वाइल्ड लाइफ का जब भी नाम आता है तो हम सोचते हैं कि वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड है, जबकि अगर आप एक डीपर सेंस में देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ सिर्फ वाइल्ड लाइफ से संबंधित नहीं है, बल्कि वाइल्ड लाइफ में अगर आप देखेंगे तो प्लांट्स भी आ जाते हैं। मेनली जो वाइल्ड प्लांट है उसको भी हम, जो न्यू डेफिनेशन है वाइल्ड लाइफ की, उसके अकॉर्डिंग उन सारी चीजों यानी वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड प्लांट्स एज वेल एज देयर नेचुरल हैबिटेट, इसको हम वाइल्ड लाइफ में ही इंक्लूड करते हैं। अब बात आती है कि इंडिया की बात अगर हम करें और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है विच इज वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटिकली रिच एरिया इन द वर्ल्ड। कई सारे हॉटस्पॉट्स यहाँ पर हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट है। उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में 15 नंबर पोजीशन पे आता है टुवर्ड्स द क्राइम अगेंस्ट द वाइल्ड लाइफ, यानी विश्व में हमारी 15वीं पोजीशन है जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है उनके अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं, जो ट्रेड होता है उसमें। उसके बाद दूसरी चीज एक ये भी हमको समझनी चाहिए कि जो एक एस्टिमेटेड ट्रेड है वाइल्ड लाइफ का, वो लगभग 120 मिलियन रुपीस के बराबर जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है वो लगभग हर साल होता है, और धीरे धीरे ये ट्रेड जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। और ये ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं कि दुनिया में जो 3 सबसे ज्यादा इलीगल क्राइम्स हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपका ड्रग ट्रैफिकिंग आता है, जिसमें नार्कोटिक्स आता है, या उसके बाद आर्म्स जो ट्रेड होते हैं वो आता है। तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा इलीगल इंटरनेशनल ट्रेड है वो वाइल्ड लाइफ जो है वो उसके अंदर आता है। तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो वाइल्ड लाइफ का जो ट्रेड है वो एक इस तरह का बिजनेस है क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म गेन बहुत ज्यादा मिलता है, और दूसरा कन्विक्शन के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम है। अब उसके बहुत सारे रीजंस हैं, थोड़े से रीजंस जो है मैं इसको आगे आपके साथ डिस्कस भी करना चाहूंगा कि क्या क्या रीजंस हैं। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की बात करें या अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पर 2 कंट्रीज जैसे कि वियतनाम और लाओस कंट्री हैं, वो एक तरीके से जो वाइल्ड लाइफ का ट्रेड है उसके लिए एक बहुत बड़े हब है। दोनों ही कंट्री वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ जो है, डिफरेंट टाइप्स का वाइल्ड लाइफ है, उसके ट्रेड के लिए पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। वहां से इन सब एनिमल्स का जो है ट्रेड होता है। अब वाइल्ड लाइफ में बात करें तो ये सब हम बेसिक सी चीजें हैं, सब जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ में कौन से एनिमल्स हैं जो ज्यादातर विक्टिम होते हैं। तो उसमें आपको पता है टाइगर है, या आपको पता है उसमें एलिफेंट है, वन हॉर्न राइनोसोर्स है। ये बड़े बड़े नाम हैं जो हम जानते हैं कि इनका ट्रेड जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स के लिए बहुत तरीके से किया जाता है। लेकिन एक नया सिनेरियो भी देखा गया है आजकल में, जैसे कि उन चीजों के बारे में हम नहीं जानते हैं। जैसे अगर बटरफ्लाई की ही बात कर ली जाए तो बटरफ्लाई का भी 2 से 3 बिलियन यूएस डॉलर का अब इंटरनेशनल मार्केट है, जिसमें वाइल्ड लाइफ इन बटरफ्लाई को इलीगली ट्रेड किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ और एनिमल्स हैं, जैसे कि आप स्पाइडर है, स्पाइडर को ले लीजिए, स्क्विरल को ले लीजिए। इन चीजों पे अभी लोगों का ध्यान उतना नहीं है क्योंकि हम बाकी एनिमल्स जो बिग एनिमल्स हैं उन पे हम फोकस हमारा रहता है सारा का सारा। लेकिन धीरे धीरे ये मार्केट जो है वाइल्ड लाइफ का जो है ये बढ़ता जा रहा है, और इसमें बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो नियर एक्सटेंशन की कगार पे आ गई है। कुछ स्पीसीज का आप हाल में ही आपने, जैसे कोविड जो हमारा पैंडेमिक है, नोवल कोरोना वायरस 2019 है, इसमें भी ये देखा गया कि जो वुहान का वेट मार्केट है वहां से कुछ वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि पैंगोलिन है और बैट है, it was thought or believed that these animals are the source of that virus, and this virus is anyhow jumped into the human and then it transferred from human to human। and इससे जो लॉस हम लोग देख रहे हैं सिचुएशन में इस वक्त की, चाहे हमारा सोशली देखें या फिर हम इसको इकोनॉमिकली देखें या हम अपना हेल्थ वेलबींग के प्रोस्पेक्ट से देखें, तो सारी चीजों में इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मेन रीजन क्या निकल के आता है कि जो वाइल्ड लाइफ का जो ट्रेड है और वाइल्ड लाइफ की जो पोचिंग होती है, उन तरीके से एक इतनी बड़ी पैंडेमिक से आज जो है इस प्रेजेंट सिनारियो में हम लोग घिरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इसके बारे में सोचना होगा क्या रीजंस हैं, क्या कारण है इन सारी चीजों। एक बात मैं और आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जैसे एनिमल्स की बात होती है उस तरीके से शायद हमको ये पता हो कि
जो प्लांट्स हैं वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और लगभग 80,000 स्पीसीज प्लांट्स की जो है वो इंडिया से हर साल स्मगल्ड की जाती है, स्पेशली द मेडिसिनल प्लांट्स जो नेपाल और चाइना या पाकिस्तान के होते हुए और बाकी सारे कंट्रीज में भी जाती है। अब दूसरी बात आती है कि क्या रीजन है वाइल्ड लाइफ के ट्रेड का, तो वो रीजन हम लोग जानते हैं कि बेसिकली इट इज फॉर फूड, फ्यूल और सम बिल्डिंग मटेरियल्स। समटाइम इट इज आल्सो यूज्ड फॉर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और मेडिसिन्स। एक और इम्पोर्टेंट रीजन है जिसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो है हमारा रिलीजियस जो बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ आइटम्स की कुछ चीजों में हम उसे धर्म से जोड़ते हैं, और उसकी वजह से भी इनका ट्रेड जो है बड़े संख्या में जो है किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट आर द 3 मेजर प्रॉब्लम्स व्हिच आर सीन या फेस्ड बाय द इंडिया इन द करंट सिनेरियो। क्या क्या सिनेरियो इसमें प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं। बेसिकली 3 प्रॉब्लम में आप एक पहली प्रॉब्लम जो है वो एक प्रॉपर मैन पावर की प्रॉब्लम हमारे पास है, क्योंकि ट्रेंड जो मैन पावर है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है हमारे पास इस फील्ड में। दूसरा एक बात है कि जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी भी अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ा सा कम है। और एक और चीज आती है कि जो पोचर्स होते हैं वो ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और उनको इस बात का भय भी नहीं होता है कि किस पे कानून किस तरीके से उनके साथ पेश आएगा, और उनको ये बिलीफ है कि वो किसी न किसी तरीके से यहाँ क्राइम करके आसानी से छूट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है वो कोई कमजोर कानून है, लेकिन एक अवेयरनेस की कमी और जो डिफरेंट जो सेक्शंस हैं, चाहे वो पुलिस है या फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, उनके बीच में जो एक कोलैबोरेशन होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कुछ लूप होल्स दिखाई देते हैं, जिस वजह से ये पोचर्स इन चीजों का इस्तेमाल करके आगे और बहुत ज्यादा हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उसको हार्म पहुंचाते हैं। वाइल्ड लाइफ की अगर लीगल फ्रेम की बात मैं यहाँ पर करूँ आपसे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में सबसे पहला जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो लाया गया था वो 1972 में आया था, एंड इट वाज गिवन बाय द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर डॉक्टर एम के रंजीत सिंह एक फेमस एनवायरमेंटलिस्ट थे, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट थे उस समय के, और उन्होंने उनकी रिकमेंडेशन पे ये एक लॉ लाया गया, और उस लॉ में ये बताया गया कि जो वाइल्ड लाइफ है वो उसका प्रोटेक्शन जो है वो बहुत बेहद जरूरी है, उसको प्रोटेक्ट करना, और किसी भी तरह की जो एनिमल्स के खिलाफ कोई भी क्रुएलिटी है, उन पर कोई ट्रेडिंग होगी किसी भी चीज के लिए, तो वो एक क्राइम के सेक्शन के अंडर में वो आएगा। इससे पहले 1972 से पहले इंडिया में वाइल्ड लाइफ को लेकर के अलग अलग स्टेट्स में सब अलग अलग कानून थे, और उसका फायदा जो था वो पोचर्स या ट्रेडर्स जो होते थे आराम से उठाया करते थे। 72 में ये कानून बन गया, और कानून बनने के बाद फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आई, तो धीरे धीरे जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसका, तो ये भी पता लगा कि इस कानून में बहुत सारे लेकुना हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से समय समय पर इसमें अमेंडमेंट्स होते रहे, और अमेंडमेंट की जरूरत भी इसमें पड़ती रही। उसको विजिट करें तो एक उससे हमारे लिए लव, एक बिलोंगिंग, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है, और जब ये चीज हम पे डेवलप होगी तो निश्चित ही हम कभी इस तरह का जो क्राइम है या इन 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 वाइल्ड लाइफ से मिल बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे अपने आप को दूर रखेंगे। और एक तरफ अगर जब इनकी डिमांड घटेगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक ये संभव है कि जो इसका इंटरनेशनल मार्केट जो है वो भी जो है कम होगा, क्योंकि डिमांड कम होगी तो ट्रेड में भी जो है वो कमी आएगी। तो वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड लाइफ लॉज अवेलेबल हैं, लॉज का जानकारी बहुत जरूरी है, उसके बाद उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। फील्ड पे हमेशा ये देखा गया है कि लॉज बन जाते हैं लेकिन फील्ड में और प्रैक्टिस में वो लॉज नहीं आ पाते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम करेंगे, इस तरीके से लॉज को समझेंगे और समझने के बाद चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से हम जो वाइल्ड लाइफ है उसको अपना कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। That's all from my side, Paras. Okay, thank you, sir. Thank you so much, sir, for providing a scientific view of nature and environment. Now, I
Please, new participant, mute yourself for the betterment of the webinar. Now, I would like to request our second very experienced law and legal studies expert, Dr. Anuradha Yadav ma'am, Assistant Professor of Law, PG and PhD from Banaras Hindu University, one of the finest University of India. Ma'am, please share your knowledge and views to all of us. Please join us, ma'am. Over to you, ma'am. So how I can see you? You can see me? Paras, you see me? Ma'am, please open your camera. Okay. Yes, you see me? No, not yet, ma'am. Hello everyone. Okay, ma'am. Okay. Good afternoon. Okay. Good afternoon, madam. Hello, I am Dr. Anuradha Yadav. So today we will discuss the environment. 8 to 10 मिनट्स के अंदर बहुत कुछ बताना है आपको कि एनवायरनमेंट क्या है, कैसा है और इस सिनेरियो में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पर्यावरण क्या है, तो आपको मैं अपनी कुछ स्लाइड्स शेयर करना चाहूंगी जिसके अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे कि वर्ड एनवायरनमेंट कहाँ से आया। ये फ्रेंच लैंग्वेज का लिया हुआ शब्द है जो कि एनवायरनमेंट की बात करता है। द वर्ड एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग। एनवायरनमेंट कंटेन्स एयर, वाटर, फूड एंड सनलाइट एक्सेट्रा। Nearby environment affect all the living creature, including the vegetables, plants, and trees. A number of necessities of life are fulfilled, rather derived from the environment. So it can be said that environment is the life support system. कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं कि वास्तव में वो सारी की सारी चीजें जो हमारे सराउंडिंग है वो हमारे लिए एक एनवायरनमेंट का काम करती है जो हमारी पूरी लाइफ पे इफेक्ट डालती है। आपको मेरी स्लाइड शो हो रही है पारस? नॉट येट मैम, अभी तक नहीं। लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम हुई थी शायद वही हो रही है। पोस्ट डिसेबल दिखा रहा है बेटा आपका। यस, जस्ट होल्ड। ओके मैम, नाउ ओके। आ गई? यस मैम। यस बेटा। तो अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया मैंने 2-3 इसमें कुछ डिफरेंसेस भी ले रखे हैं और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें दिया गया है। आपने स्लाइड पे देख सकती हैं कि ये टर्म्स जो है वर्ड मीनिंग कि एनवायरनमेंट एक्चुअल में क्या होता है। एनवायरनमेंट एक तरह का ऐसा आपका एटमॉस्फेयर है जिसमें 4 लेयर्स होती हैं जो हमारे वातावरण को बना करके रखता है। अगर उसके किसी चीज पे हम इफेक्ट डालते हैं जो कि नेचुरल या अननेचुरल होता है वो कहीं ना कहीं फिर हमें इफेक्ट डालता है, जैसा कि आज हो रहा है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि आपको सराउंडिंग होती है ये सारी चीज जिसमें प्लांट, ट्रीज, वेजिटेबल्स, क्रिएचर्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो इंक्लूड इन हियर। तो ये सारी चीजें मिलाकर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट को जो हम लोगों ने आगे चल करके कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग लेते हुए इसको बोलते हैं संपोषणी विकास। विकास किसका? हमारा या हमारी सोसाइटी का या हमारे समाज का। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोगों ने जब अर्थ सम्मेलन 1972 में किया था हम लोगों ने, उसी समय ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि जो पोषणीय विकास है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। आज कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन जो 90s के दौर में लेकर के आए उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे अर्थ पे पड़ा, हमारे नेचर पे पड़ा। देखते ही देखते हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा लिया, हमने अपने आप को बहुत टेक्नोलॉजी से प्लस कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्राकृतिक रूप से बहुत पीछे चले जा रहे हैं। उसका वैश्विक जो कह सकते हैं आप नुकसान हमें देखने को पड़ रहा है। इस रेफरेंस में मैं सिर्फ आपको आज थोड़ा सा डायरेक्शन दूंगी हमारे ईपी एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, जो कि क्या है, कैसे काम करता है और किन के माध्यम से इसको स्टेट और सेंट्रल को पावर मिले हुए हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है पार्लियामेंट को कि आप एक ऐसा कोई भी संस्था बना सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं
इस पूरी की पूरी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकती है। सबसे पहले जब भारत, हम लोग 1950 से पहले जब बात कर रहे थे, जबकि 1948 में यूएनओ बनाया जा रहा था और डिक्लेरेशन आ रहे थे ह्यूमन राइट्स के लिए, उस दौरान सबसे पहली बार शुरुआत हो चुकी थी सारी चीज़ों की प्रोटेक्शन के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जगह दी जा रही थी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो 42nd अमेंडमेंट आया था 1976 में, उस दौरान हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया दो चीजें। सबसे पहले कहा गया कि 48 जो कि कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति, Constitution imposed duty on the government and citizens alike to put combined efforts and take appropriate measure for protection and improvement of natural environment and all creatures. It means ये क्लियर होता है कि हमें 48A और 51AG में जो फंडामेंटल ड्यूटीज और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस के लिए जो रिसोर्सेज दिए गए गवर्नमेंट के थ्रू, वो वास्तव में हमारे लिए आज एक कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट्स हैं। अब मैं बात करूंगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कि व्हाट इज इट, वास्तव में ये क्या होता है। एक विकास एंड एम्पावरमेंट इन ह्यूमन well-being that allow us to meet the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own words is called। अपने जनरेशन को आगे देने के लिए हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जो हम विरासत में दे के जाते हैं। कहीं हमारा डेवलपमेंट ऐसा तो नहीं कि आने वाली पीढ़ी को हम कुछ ना दे करके उनको बहुत कुछ ऐसा दे जाएं कि वो जीवन भर सरवाइव करते रहें। तो इस कॉन्सेप्ट को रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आए और हमने ये कहा कि कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी विकास उस लेवल पे नहीं होना चाहिए कि जो आने वाली पीढ़ी या भावी पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के ही ना जाए। तो विकास का दायरा होगा, लेकिन उस दायरे में रह के हमें विकास करना है जो कि आने वाले भविष्य को भी सुरक्षित करती है। ये सारी चीजें हमने दिया। इसके बाद मैं आपको कुछ मेजर चीजें बताना चाहूंगी ईपीए एक्ट के बारे में। ईपीए एक्ट 1986 में पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था और ये आया था भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी 1986 के दौरान, तब इसको पास किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 253 हमें गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को एम्पावरमेंट देता है और 19 नवंबर 1986 को इसको प्रेसिडेंट के साथ परमिशन मिली और ये इन्फोर्समेंट में आ गया था। इसके 4 पार्ट हैं। इसमें सेक्शन 2 जो है वो सारे के सारे डेफिनेशंस क्लॉज को हैंडल ओवर करता है। सेकंड पार्ट मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट बताता है। इसके बाद मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट सेक्शन 2A डिफाइन करता है, जिसको मैंने अभी बताया कि पर्यावरण के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं। सेकंड बताता है पोलेंट, सेकंड जो बताता है वो पोल्यूटेंट क्या होता है, सेक्शन 2B। सेक्शन 2C बताता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण। और thirdly section 2E, this is the major 4 sections sub clause which is exclusively related with the essential part of the environment, hazardous substances। and next बात मैं करूंगी ये 4 चैप्टर्स और 26 सेक्शंस में डिवाइड है ये पूरा। इसको जब मैं कंक्लूसिव तौर पे अगर इस एक्ट को डिवाइड करती हूँ तो फर्स्ट चैप्टर जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन देता है, जो कि बताता है कि कंटेंट एक्सटेंट कहाँ तक है, इसका नाम और इन्वेस्टमेंट डेट वगैरह कहाँ है। चैप्टर 2 जो बताता है वो डिस्क्राइब करता है जनरल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स की, जो भी पावर जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट्स को मिले हुए हैं वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफाइन किए गए हैं चैप्टर 2 में। एंड सेक्शन अकॉर्डिंग चैप्टर 3 जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पावर टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, वो क्या पावर है जो एक्सरसाइज कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उन सब के बारे में जो अथॉरिटी देती है वो चैप्टर 3 प्रोवाइड करता है। एंड लास्टली सेक्शन 4 जिसको मैं चैप्टर 4 कहूंगी, अलाउ द गवर्नमेंट टू अपॉइंट ऑफिस अचीव दोज ऑब्जेक्ट्स। इट मींस गवर्नमेंट की अथॉरिटीज को, जैसे आपने ट्रिब्यूनल्स के बारे में सुना होगा, ये सारी की सारी चीजें कहाँ से आती हैं, तो वो इस एक्ट के थ्रू ही आती है। ईपी एक्ट को अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ईपी एक्ट आने से पहले हमारे पास वाटर एक्ट, एयर एक्ट, बहुत सारे छोटे छोटे माइनर्स एक्ट थे, लेकिन इनको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर इन सारे एक्ट को मिला करके इनको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में डाल दिया गया। इसलिए जब बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट को मिला के एक मेजर एक्ट बनाया जाता है तो उसे अम्ब्रेला एक्ट भी कॉल करते हैं। लास्टली मैं बात करना चाहूंगी काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन?
So air pollution, water pollution, land pollution, and radioactive pollution and noise pollution. These are the lots of pollution in which correlate with air. अब मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इसने 1986 में जो एक्ट लाया, उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51AG एंड आर्टिकल 21, इसमें बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट थे जो जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से या PIL के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शंस दिए, अपनी ओवरव्यूज दिए, और कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को इतना ज्यादा इलेबोरेट किया कि आज की डेट में राइट टू लाइफ के साथ साथ राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू लिबर्टी, राइट टू एनवायरमेंटल, ये हमारे फंडामेंटल बेसिक राइट्स बन चुके हैं। इसलिए यहाँ पे मैं कुछ केस लॉस को जरूर लेना चाहूंगी, जिसमें से पहला मैं लूंगी सबसे इम्पोर्टेंट केस जो है आपका मुरली एस देवरा का केस। इसको मैं इसलिए आपसे रेफरेंस करना चाहूंगी क्योंकि आप अगर सार्वजनिक प्लेसेस पर देखते हैं तो आज की डेट में आपको कभी भी साफ लिखा होता है कि स्मोकिंग इज नॉट हियर। इसके पीछे रीजन क्या था? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि उसमें जो भी नॉन स्मोकर इज अफेक्टेड बाय द वेरियस डिजीज इंक्लूडिंग द लंग कैंसर or of the heart disease only because he is required to go to cancer of the disease, only because he required to go smoking in injurious and to even affect the health of passive smokers. The court expressed the views smoking pollutes and environment which affect the health of the even non-smokers. Consequently, the central government banned smoking at the public place like hospitals, libraries, auditorium, railway station, airport and the college and etc. ये डिसीजन जो था बहुत ही ज्यादा वेल अवेयर किया द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर एनवायरनमेंट इन ह्यूमन लाइफ। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को बेस बना करके इस प्रोटेक्शन ने इम्प्रूवमेंट लाया नेचुरल एनवायरनमेंट में, एंड एनी ऑफ इट्स प्रोविजन कैन नॉट बी कॉल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही। इसके साथ ही मैं एक केस और आपके सामने रखना चाहूंगी बच्चों, टी दामोदर राव, एक स्पेशल ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद की, जिसने 48A को रेफरेंस देकर के बहुत ही अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नमेंट एंड कोर्ट्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ये ऑब्लिगेशन होता है गवर्नमेंट के ऊपर और कोर्ट्स के ऊपर कि वे अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। जरूरी नहीं है कि कुछ चीजें दी गई हों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय हमने प्रियम्बल को जब मेंशन किया था तो हमने उसमें हर प्रकार के स्टेटस और इक्वालिटी की बात की थी, हर प्रकार के जस्टिस की बात की थी। तो जब इसकी बात आती है तो राइट टू इक्वालिटी में हमें आज अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस बना दिए गए हैं कि अगर नेचुरल राइट्स हमारे हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो यही वो रीजंस थे जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने वाइडरली इंटरप्रिटेशन के माध्यम से बहुत सारी चीजों को हमारे सामने रखा। अब मैं एक बहुत नई चीज आपके सामने लाने चाह रही हूँ, हालांकि ये नई नहीं है लेकिन फिर भी जो परसुइंग LLB स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जरूर बहुत एक नॉलेजेबल चीज है। EIA, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट। ये कब आया, कैसे आया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी? ये 1992 में रियो डिक्लेरेशन जब हुआ था, ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है रियो डिक्लेरेशन हमारे लिए, एनवायरनमेंट के लिए, और उस समय इसकी सबसे पहली बार नींव पड़ी थी। ये क्या होता है? पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। जब हम कोई एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पावर प्लांट, कोई भी डैम खोलने जाते हैं तो किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी को, मल्टीनेशनल कंपनी को, जब वो किसी भी एरिया में आती है तो उसको पहले EIA के अकॉर्डिंग अपनी कंसेंट लेनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। इस गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कंसिडरेशन देती है कि हाँ आप इस एरिया, पर्टिकुलर एरिया में कोई भी चीज खोल सकते हैं या ले सकते हैं, तो फिर वो आपको वहां पर एक परमिशन मिल जाती है। लेकिन ये परमिशन आपको जो था 1 महीने के कंसिडरेशन के दौरान मिलता था कि आपको 1 महीने की टाइम दिया जाता था। उसमें जो वहाँ की लोकल पब्लिक है वो पूरा का पूरा अपनी ओपिनियन देती थी। अगर उससे कोई ऑब्जेक्शन है, वहाँ पे रहने वालों को, वहाँ के जो भी एम्प्लॉयमेंट जो वहाँ काम कर रहा है या जो उस एरिया के प्रभावित लोग हैं, वो एक मेल के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते थे। उस कंप्लेंट को सुनने के बाद, उनके कंडीशंस को देखने के बाद ही वहाँ की जो अथॉरिटी या गवर्नमेंट होती थी अप्रोप्रिएट, वो इन चीजों को आगे एनालिसिस करती थी। अगर सब कुछ सही होता था तो उन्हें कंसेंट मिलती थी। और नेक्स्टली जो है
ये आपके सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई भी पावर प्लांट चीजें बनाई जाती थी, इन सब को इवेलुएट करके कि क्या वहाँ के लोकल एरियाज को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सारी चीजों को EIA के माध्यम से पहले से ही क्या एनवायरनमेंट पे इसका इफेक्ट होगा ये देखने के बाद ये काम किया जाता था। EIA जो था वो 27 जनवरी 1994 को फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ एग्जिस्टेंस में आ गया और इसमें A, B और B2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। A कैटेगरी और B कैटेगरी में वो कैटेगरीज आती थी जिनके लिए आपको पहले से एप्लीकेशन देना होता था और आप अपनी किसी भी चीज को बारे में बताएंगे। B कैटेगरी के लिए परमिशन कंपल्सरी नहीं हुआ करता था क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे एस्टेब्लिशमेंट आया करते थे। लेकिन नया अभी 2019-20 में एक नया एक्ट आ रहा है जिसमें कि इसमें कुछ अमेंडमेंट के साथ इसको लाया गया है। उसमें रिकमेंडेशन की जा रही है, इसमें मैं चाहूंगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको जानें। और कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया बनाए गए थे जैसे नैनीताल है, पहाड़ी हिल्स एरिया होते हैं, दून वैलीज है, ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया इसमें 6 डिवाइड किए गए थे जहाँ पे लोगों को बनाना भी मुश्किल हुआ करता था। लेकिन अगर ये एक्ट आता है तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे पार्टिसिपेशन से निकल जाएंगी क्योंकि इसमें आपको 94 का जो एक्ट है जो 1918 तक चल रहा है उसमें हम सब सिटीजन्स को एक राइट्स मिला हुआ है कि हम अपनी ओपिनियन दे सकते हैं और किसी भी तरह के किसी भी प्रकार के अगर हमें कोई वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहिए, वो हमारे एटमॉस्फेयर पे प्रभाव डालती है तो हम उसे रोकते हैं। लेकिन वो जो आपके एप्लीकेशन देने का जो टाइम था, हमारे कंप्लेन करने का जो टाइम 1 मंथ था, वो कर्टल करके 15 डेज का होने जा रहा है। गवर्नमेंट को अगर लगेगा कि हाँ ये ड्यूरेशन, क्योंकि अभी तक इतनी बड़ी कंट्री में मैक्सिमम 6000 मेल ही अभी तक गवर्नमेंट के पास गए हैं कि नहीं 15 दिन से ज्यादा होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो एक बहुत बड़े आबादी के देश में इस तरह से एनवायरनमेंट को अवेयर ना होना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारे अस्तित्व पर। आज हम कितनी भी डिबेट्स कर ले, लेकिन अगर हम इन चीजों से एक्चुअली में कनेक्टेड नहीं है तो हम कुछ नहीं बचा सकते हैं। दूसरी चीज, पहले हम पोस्ट की बात करते थे कि हम पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल देंगे या पोस्ट कंसेंट देंगे। आज की डेट में इस्टेब्लिश शुरू हो जाएगा, उसके बाद वो 1 या 2 मंथ या आफ्टर 6 मंथ के बाद भी वो इन चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी कि जिस कंसेंट की, जिस एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से वो पहले परमिशन ले रहे थे, वो परमिशन लेने के लिए उनको कोई जरूरत नहीं है, वो कोई भी इस्टेब्लिशमेंट अपना शुरू कर सकते हैं। और आने वाले मंथ में जब उनका काम शुरू हो जाएगा, जब वो 3000-4000 पेड़ों की कटाई कर चुके होंगे, तब भी वो परमिशन ले सकते हैं। इट मीन्स ये उनका अब एक राइट्स बन चुका है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी, मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी, आपके अपने ही शहर में अपनी चीजों को बनाएंगी, लेकिन आप अपनी अथॉरिटी, अपने जुरिडिक्शन को इफेक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अवेयर नहीं हो उन चीजों से। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा आपको जो इन्फॉर्म करना चाहूंगी, क्योंकि EP एक्ट हम सब पढ़ेंगे, जानेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि हम उस मुहिम से जुड़े जो जरूरी है हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे आज की डेट से। तो आप सब इसको समझिए और जानिए। और अगर लगता है कि नहीं ये हमारे राइट्स कर्टेल कर रहे हैं, क्योंकि अवेयर न होना भी हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक है। इसलिए एक लॉ के प्लेटफॉर्म पे आप सब समझिए, जुड़िए और सोचिए कि क्या वास्तव में EIA जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, प्रभाव मूल्यांकन है, क्या वो उसके ये जो बदलाव हैं जो गवर्नमेंट ला रही है वो सही है? क्या सिर्फ डेवलपमेंट जरूरी है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है? इसके साथ ही मैं अपनी चीजों को विराम देती हूँ। Have a nice day. Okay, Paras? Okay, thank you so much, मैम। प्लीज आप स्क्रीन बंद कर दीजिए मैम। स्क्रीन बंद कीजिए। ओके बेटा। Okay, thank you so much, ma'am, for your important views on scientific law at the global level. Or EP Act, it's a really important act for all of us. इसके थ्रू ये हो रहा है कि I don't know कि how much we are aware, but as ma'am said कि जब तक हम लोगों को पता लगता है तब तक MNCs जो हैं वो गवर्नमेंट से परमिशन बाद में लेती हैं, बट उससे पहले ही उस रूल के बेनिफिट्स को अटेन करने लगती हैं। सो इट्स अ बिगर थिंग, बट व्हाट वी कैन डू, हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, जैसा कि मैम ने सेक्शंस बताए कि सिर्फ लिखा होता है कि
this is not useful, this is prohibited, or smoking is prohibited. So it's not just a request. ये सिर्फ अब request नहीं है, ये एक तरीके का अब एक prohibition भी है आपके ऊपर, और साथ ही साथ हम लोग का एक right भी है या duty कह लीजिए कि हमें ये maintain करना है. अकेले हम environment को protect तो छोड़िए, खुद को भी protect नहीं कर सकते. So thank you ma'am, thank you sir for your innovative and free time speech. आपने अपना वक्त निकाला, आप लोगों ने, दोनों एक्सपर्ट्स ने, और हमें इस एक प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया. वेरी वेरी थैंक यू.